So we are reading from Shrimad Bhagavatam 1.7.53-54. Shri Bhagavanuvach Brahmabandhurna hantavya atatayi vadarhanah mayaivo bhayamam natam paripahya anushasanam kuru pratishrutam satyam yattat सांत्वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्यामह्यमेव च. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The personality of Godhead Sri Krishna said, a friend of a Brahmana is not to be killed, but if he is an aggressor, he must be killed. All these rulings are in the scriptures and you should act accordingly. You have to fulfill your promise to your wife and you must also act to the satisfaction of Bhimsena and me. Purport. Arjuna was perplexed because Ashwatthama was to be killed as well as spared, according to different scriptures cited by different persons. As a Brahmabandhu or a worthless person of a Brahmana, Ashwatthama was not to be killed, but he was at the same time an aggressor also. And according to the rulings of Manu, an aggressor, even though he be a Brahmana, and what to speak of an unworthy son of a Brahmana, is to be killed. Dronacharya was certainly a Brahmana in the true sense of the term, but because he stood in the battlefield, he was killed. But although Ashwatthama was an aggressor, he stood without any fighting weapons. The ruling is that an aggressor, when he is without weapon or chariot, cannot be killed. All these were for certain perplexities. Besides that, Arjuna had to keep the promise he had made before Draupadi just to pacify her. And he also had to satisfy both Bhima and Krishna, who advised killing him. This dilemma was present before Arjuna, and the solution was awarded by Krishna. So we can see how Arjuna is in dilemma now. Now dilemma you can understand कि कुछ स्क्रिप्चर बोल रहे हैं कि ब्रह्म बंधु जो एक ब्राह्मण का बंधु मतलब जो ब्राह्मण जैसा बंधु मतलब सखा या बंधु मतलब भाई, तो जो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है बट ब्राह्मण का सखा भाई कोई ना कोई रिश्तेदार है, और उसकी उसके जो कृत्य हैं वो भी ब्राह्मण जैसे नहीं है. लेकिन यहाँ पर जो अश्वत्थामा है वो ब्रह्म बंधु होने के अलावा, शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधु को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये ब्रह्म बंधु होने के अलावा ये एक एग्रेसर भी, आतताई भी है, आतताई को मारना चाहिए. फिर अगेन स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि अगर वो लड़ने के लिए कोई ब्राह्मण भी खड़ा होता है तो उसको भी मारना चाहिए. द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे किंतु क्योंकि युद्ध में वो भाग लिए तो उसको इसलिए उनको मरना पड़ा, और इसका कोई पाप नहीं है. और जब कोई शस्त्र लेके खड़ा हो तो उसको मारा जा सकता है, लेकिन अश्वत्थामा तो बिना किसी शस्त्र के था तो फिर उसको नहीं मारा जा सकता है. तो और अर्जुन को सेटिस्फाई करना है अपनी पत्नी द्रौपदी को, भगवान कृष्ण को, भीम को. इन्होंने पहले वचन भी लिया था कि इसको मारना है अश्वत्थामा को, मतलब उन्होंने अर्जुन ने कहा था मैं मारूंगा, और भीम और कृष्ण भी कह रहे थे इसको मारो. अभी द्रौपदी कुछ और कह रही है नाउ, एंड जो युधिष्ठिर महाराज है वो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं. तो अर्जुन के सामने पूरी दुविधा थी. तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी दुविधाएं आती हैं, क्योंकि क्योंकि ह्यूमन लाइफ आप देखेंगे कि स्क्रिप्चर्स के अनुसार जो ह्यूमन लाइफ है वो परफेक्ट नहीं है, और उसमें बीच बीच में आपको इसी प्रकार की समस्या आएगी. किस प्रकार की? जहां पर आपको धर्म और अधर्म के बीच में चूज नहीं करना होगा, आपको धर्म और धर्म के बीच में ही चूज करना होगा. कहीं एक लोअर धर्म आएगा, कहीं एक हायर धर्म आएगा, दो प्रकार के धर्म आएंगे, एंड आपको चूज करना होगा कि क्या इसमें कौन सा हायर है कौन सा लोअर है. तो अभी अर्जुन को ऐसा काम करना है जिससे सब सारे शास्त्रों के सारे जो उपदेश हैं वो जो पालन हो जाए. तो नेक्स्ट, यस अरविंद प्रभु. सूत उवाच अर्जुनः सह साज्ञाया हरेर्हार्दार्धमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजमा. Suta Goswami said, just then Arjuna could understand the motive of Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both hair and jewel from
the head of Aswasthama, purport. Contradictory orders of different persons are impossible to carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Aswasthama. This was as good as cutting off his head, and yet his life was saved for all practical purpose. Here, Aswasthama is indicated as twice born. Certainly, he was twice born, but he fell down from his position, and therefore he was properly punished. तो यही एक भक्त जो होता है भगवान का, शुद्ध भक्त, उसका भगवान के साथ जो संबंध होता है वो इतना प्रगाढ़ होता है कि भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में उसे बुद्धि देते हैं। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते ते। तो मैं बुद्धि योग देता हूँ जो मुझे सतत भजते हैं। तो अर्जुन के, कहते हैं शास्त्रों के अनुसार, कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण होता था। तो अर्जुन को भगवान ने तुरंत ही वह बुद्धि प्रदान की जिससे अर्जुन समझ पाए कि मुझे क्या करना है। उन्होंने भगवान के हृदय को समझा, और भगवान का आदेश के अनुसार, जो कि उन्हें अपने हृदय में समझ में आया, उसके अनुसार उन्होंने अश्वत्थामा को मारा भी और नहीं भी मारा। तो अश्वत्थामा के उन्होंने बाल काट दिए, और उसका जो मणि थी जो सर पे, वो निकाल दी। तो इट इज एज गुड एज किलिंग, बट एट द सेम टाइम नॉट किलिंग। ठीक है। तो दिस इज हाउ डिवोटी वुड फाइंड आउट सम सोल्यूशन। कोर्स हर बार हमें सोल्यूशन मिल जाए, मतलब ये जितना हम भगवान से वास्तव में हमारा संबंध प्रगाढ़ होता जाएगा, उतना ही हमें ये साक्षात्कार होता जाएगा। हमारी वर्तमान बद्ध अवस्था में हो सकता है कि हम अभी उतने उन्नत भक्त नहीं हुए हैं कि हम यह समझ पाए कि भगवान वास्तव में क्या चाहते हैं। तो उत्तम अधिकारी भक्त जो होता है भगवान का, वह उत्तम अधिकारी भगवान के हृदय को समझता है, अपने गुरु के हृदय को समझता है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वह वही कार्य करता है जो भगवान और गुरु को प्रसन्न करे। So we all have to pray that one day we can become Uttam Adhikari. We can understand the heart of Krishna. Yes. Shyam Prabhu. विचित्र मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सिद्ध। विमुच्य रसनावर्धम बालहत्या हतप्रभम तेजसा मणिना विघ्नं शिविरा नरया पयत। Translation: He Asutama had already lost his bodily luster due to infanticide, and now, moreover, having lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus, he was unbounded and a prisoner of the camp. Purport: thus, being insulted, the humiliated Ashwatthama was simultaneously killed and not killed by the intelligence of the Lord Krishna and Arjuna. कहते हैं कि जो एक सम्मानित व्यक्ति होता है, उसके लिए अपमान मृत्यु के समान है। और वन who is honored, for him this insult is like as good as killing. So now he has been insulted sufficiently. बाल काट दिए और उसका जेवल निकाल दिया, तो इंसल्ट हो गया, बहुत अपमान हो गया। तो एज गुड एज किल्ड, एंड उसको फिर छोड़ दिया। अभी देखिए छोड़ने के बाद क्या होता है, अगेन आपको समझ में आएगा। यस। आई रीड प्रभु जी। वपनम द्रविणादानम स्थानानि यार्पणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिक। Translation: Cutting the hair from his head, depriving him of his wealth, and driving him from his residence are the prescribed punishments for the relative of a Brahmana. There is no injunction for killing the body. तो यहाँ पर इस प्रकार देखिए, ये जो है अभी कौन बात कर रहा है, हम लोग कह रहे थे सूत उवाच है। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ब्रह्म बंधु को मारने के लिए क्या है, ब्रह्म बंधु को मारने के लिए यही नियम है कि उसको उसकी धन से हटा दो, उसका धन छीन लो उससे, और शरीर से उसके सर से बाल हटा दो, और उसको घर से निकाल दो। ये ब्रह्म बंधु के लिए रिलेटिव ऑफ अ ब्राह्मण है, एंड उसको मारने का कोई प्रावधान नहीं है। असित प्रभु।
Yes, bro. पुत्र सुखातृष सर्वे पांडव सह कृष्णय स्वमृतम् उत्क्रियतं काकुरुण्यहार्दिकम्. Thereafter, the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed the proper rituals for the dead bodies of their relatives. Purport. Thus, end of Bhaktivedanta purports of the first canto, seventh chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Son of Drona, the Son of Drona Punished. तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है कि यहाँ पर अ, पांडव और द्रौपदी ने फिर दुखी मन से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों के, अपने बंधुओं के जो शरीर थे उनको अंतिम संस्कार किया। तो हमारे यहाँ सप्तम अध्याय खत्म होता है और प्रथम कैंटो का, प्रथम स्कंद का अष्टम अध्याय यहाँ से शुरू होगा। सो 1.8.1 सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं संकृष्णास् गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः. Sutta Goswami said, thereafter the Pandavas, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, who went to the Ganges with Draupadi. The ladies walked in front. Purport. To date, it is the custom in Hindu society to go to the Ganges or any other sacred river to take bath when death occurs in the family. Each of the family members pours out a pot full of the Ganges water for the departed soul and walks in procession with the ladies in the front. The Pandavas also followed the rules more than 5,000 years ago. Lord Krishna, being a cousin of Pandavas, was also amongst the family members. तो यह जो रीति है कि अगर कोई, आप लोगों के घरों में भी, कई लोगों के घरों में ये फॉलो होता होगा कि जब कोई परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो फिर जाकर गंगा स्नान या किसी नदी से स्नान किया जाता है, बाहर, घर के बाहर जाके स्नान किया जाता है। तो इसी प्रकार से पांडवों ने, और क्योंकि भगवान भी उनके कजिन के रूप में व्यवहार कर रहे थे तो भगवान ने भी इस रूल को फॉलो किया, ये 5,000 साल पहले। तो एक्चुअली वैदिक संस्कृति आज की नहीं है। वैदिक संस्कृति जो है, सनातन धर्म सनातन है। सनातन का अर्थ है कि वह नित्य धर्म है। सनातन का अर्थ है जो वास्तविक धर्म है। सनातन का अर्थ है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये आपका धर्म है, ये करना है, ये जीवन का लाइफ स्टाइल है, एक्चुअली जीवन जीने का तरीका है। तो ये जो हमारे इंजंक्शंस दिए थे, परफेक्ट इंजंक्शंस हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, जिनको फॉलो करके इनका हम अपने, जो जो लोग घर से, जो हमारे रिलेटिव्स मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति प्राप्त की जा सकती है। तो हमारे पुराणों में ये सब जो तंत्र क्रियाएं जो हैं दी हुई हैं, और इसको हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि इसको स्पिरिट में, भाव में फॉलो करते हैं। और उसका साथ साथ उसका कोई तंत्र भी रहता है कि क्या क्या मुझे इतना सामान देते हैं, इतना, बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं शास्त्रों में, तो उनको फॉलो किया जाता है, which are not against the contrary to Krishna consciousness. Generally, we also, as ISKCON devotees, we also follow the those injunctions, which are not actually against bhakti. There are certain things which may look against bhakti, तो we don't follow those. जैसे कि देवी देवताओं की पूजा करना और उनसे कुछ भौतिक भौतिक सुख सुविधाएं मांगना, है ना। तो वो उस प्रकार के इंजंक्शंस हम फॉलो नहीं करते। लेकिन जो इंजंक्शन हमारी भक्ति के विरुद्ध नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति हमारी शरणागति के विरुद्ध नहीं है, तो उनको हम फॉलो करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद। इफ यू वांट टू से समथिंग, असित प्रभु। No, Prabhuji, no. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ अच्छा प्रभु जी, एक थोड़ा सा डाउट ये था कि क्या अश्वत्थामा को मारा जा सकता था? वो कुछ मतलब ऐसा तो नहीं था कि खुद द्रोणाचार्य ने शायद उसको अमरता का वरदान पुत्र की वजह से दिया था, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, उसको जो यस, हाँ, अश्वत्थामा को अमरता का वरदान था। एक्चुअली इट इज मोर लाइक अ कर्स नाउ। तो ये, इसका तो जिक्र भागवतम में नहीं आया है कि वो अमरता का वरदान था।
हो सकता है महाभारत में इसका जिक्र आया हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिस्कशन जैसा हुआ है उससे तो ये पता चलता है कि मारने के लिए तैयार थे अर्जुन। और भगवान कृष्ण तो कोई भी वरदान हो, भगवान कृष्ण तो किसी भी वरदान को काट सकते हैं। वो किसी भी वरदान को प्रदान कर सकते हैं, वो किसी भी वरदान को काट सकते हैं। तो एक तरीके से मृत्यु तो उसकी हुई, उसको अपमानित करके उसकी मृत्यु हुई। तो भागवतम में जितना उल्लेख आया है उतना हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी महाभारत में या किसी और पुराण में कुछ ना कुछ इसका उल्लेख आया होगा कि अश्वत्थामा को अमरता का वरदान था, जैसा कि इसमें आई थिंक शायद हम लोगों ने भी यही पढ़ा है कि अश्वत्थामा को वरदान था अमरता का। बट फ्रॉम भागवतम इट अपियर्स दैट ऐसा वरदान उस टाइप का नहीं था। इट्स वरदान से ज्यादा ये जो मणि थी, शायद ये मणि के कारण या इसको, हाँ अमरता अभी अभी एक्चुअली अश्वत्थामा है। आप जब आगे श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि अश्वत्थामा अभी भी हैं, और अश्वत्थामा एक विशेष स्थान पर रुके हुए हैं। और जब अगला मनवंतर आएगा, तो ये तो इस मनवंतर में वो चलेंगे, अगला मनवंतर आएगा तो उनको इंद्र का पद प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो इन्होंने इतनी तपस्या की है ना सजा मिलने के बाद, अब सजा मिलने के बाद नाउ ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग हिज, यू कैन से रिपेंटेंस, पश्चाताप जो कर रहे हैं हम इस पूरे मनवंतर में रिमेनिंग में। तो इसके बाद इनको पुनः एक पद प्राप्त होगा। ऐसा शास्त्र में आप आगे जैसे भागवतम पढ़ेंगे तो आगे किसी स्कंद में इसका उल्लेख आता है। तो इन दैट सेंस इज एक्चुअली नोबडी इज अमर, कोई भी अमर नहीं है। अमरता का वरदान जितना है उसका एक टाइम पीरियड है, जैसे एक मनवंतर से ज्यादा नहीं है किसी का। अमर आप केवल एक ही जगह हो सकते हैं, आध्यात्मिक संसार। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि इज एक्चुअली ही इज इन स्पिरिचुअल बॉडी। तो स्पिरिचुअल बॉडी जब तक नहीं है तब तक आप अमर नहीं है। जब तक आपकी मेटेरियल बॉडी है तब तक आप अमर नहीं है। आप जैसे ही स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाएगी आप शाश्वत हो जाएंगे। ठीक है। ओके प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।